ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸ਼ਾਲੋਮ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਕਰੇ, ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਰੇਮਾ ਵਚਨ। ਔਰ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹ ਵਰਡ ਆਫ ਗੋਡ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ, ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਨੰਦ 'ਚ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਟ, ਇੱਕ ਨਬੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਗੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹਾਗੇ ਦੀ ਜੋ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਫਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ। ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਆਇਤ, ਤੀਸਰੀ ਆਇਤ, ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਤਸੱਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਦਿੱਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਵਚਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, ਹਾਗੇ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ पहली तो पढ़ लगा है। लिखा, फिर 7वें महीने के 21वें दिन को यहोवा का वचन हागे भविष्यवक्ता के पास पहुंचा। कि केड़े दिन? 7वें महीने और 21वें दिन। तुहानू पता है केड़ा मंथ चल रहा है? ये 7वां महीना चलता पाया, हाँ, जुलाई। और परमेश्वर ने इत्थे लिखा आया कि फिर 7वें महीने के 21वें दिन को परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा। ब्लेसिंग्स का दिन है ये मंथ, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। और अगे लिखे आया, बड़ा सोहना लिखा अगे वचन दे लिखा, तीसरी आयत में मैं पढ़ना चाहवागा। तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी है? अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो? क्या यह सच नहीं है कि तुम्हारी दृष्टि में उस पहले की उपेक्षा कुछ भी अच्छी नहीं है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਖੰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਵਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਭਵਨ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਰਾਜਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੀਲੋਨ, ਬਦਵਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਾਸਤਵ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੋਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਵਾਪਸ। ਔਰ ਹਾਗੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੰਦਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੰਦਰ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮੰਦਰ ਸੀਗਾ, ਭਵਨ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੰਦਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੋੜਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਹਾਗੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗੀ, ਭਵਨ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਮਾ? ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਹਿਮਾ ਦਿਖਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸਡਨਲੀ, ਅਚਾਨਕ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੈਂਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਗਰੀਬੀ ਆ ਗਈ, ਹਾਂ, ਕਰਜ਼ ਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਡਨਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ? हाँ। और एक ही कह रहा है हागे जो नबी है,
ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭਵਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਵਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਿਆਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਕੁਛ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਚੌਥੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ, तो भी अब यहोवा की यह वाणी है, ए यूराबेल हिवाए बांध, और ये यहोशादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हिवाए बांध, और यहोवा की यह वाणी है कि ये देश के सब लोगों हिवाए बांध कर काम करो, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। सेना की यहोवा की ये वाणी है। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈਏ, ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਦਾਸ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਸੀਗੇ, ਮੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਭਵਨ ਉਜਾੜ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ, ਕभी ਹਾਰ ਮਤ ਮਾਨੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹਾਰ ਮਤ ਮਾਨੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੋ। ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਕਰੋ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅਪ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਆ, तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय जो वांछा मैंने तुमसे बांधी थी, उसी वांछा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, इसलिए तुम मत डरो। हालेलुया। प्रॉब्लम आ गई, मत डरो। समस्या आ गई, मत डरो। रुकावट आ गई, गरीबी आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, मत डरो। हिज आगे आप लोगों को प्रेरणा दे रहा है, लोगों को कह रहा है, क्या कह रहा है, खड़े हो जाओ, काम करो। हालेलुया। परमेश्वर आपकी पहली दशा कैसी थी? आप सोचे थोड़ा सा, कैसे थे आप और अब कैसे हैं? क्या आप टूटे हैं? क्या आपने प्रेयर छोड़ दी है? पहले करते थे, बहुत प्रेयर करते थे, अचानक बीमारी आ गई, छोड़ दिया। प्रेयर बंद कर दी, समस्या आ गई, प्रेयर बंद कर दी, चर्च जाना बंद कर दिया, खुदा को छोड़ दिया। क्या ऐसी दशा है आपकी? आप उस दशा में रह करके आप बरकत नहीं पा सकते। जैसी दशा पहले थी वैसे ही अब वैसे ही होनी चाहिए। प्रेयर होनी चाहिए, बाइबल रीडिंग होनी चाहिए, और परमेश्वर का आत्मा आपको खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। आगे लिखा है, आगे बहुत सोना लिखा है, क्योंकि सेना का यहोवा ये कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंपित करूँगा, और सारी जातियों को कंपकाऊँगा, और सारी जातियाँ मनभावनी बस्तियों आएगी, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूँगा। सेना का यहोवा है। हालेलुया। आगे लिखा, इस भवन की पिछली महिमा जो पिछली महिमा थी, कितना सुंदर भवन था। बनाया था राजा सुलेमान ने, कितना अच्छा था। आपने भी कुछ सुपने सजाए हैं, आपने भी कुछ देखा है, आपने भी कुछ चाहा है, आपने भी बोला है मैं चंगा हो जाऊं, मैं ब्लेस रहूं, आशीषित रहूं। प्रभु यही बात कर रहा है। पहले भी आप कैसे थे? आप अच्छे थे, सडनली बीमारी आ गई। अभी क्या बोल रहा है परमेश्वर? कह रहा है इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से, लिखा इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। हालेलुया। डोंट गिव अप। मत छोड़ो प्रभु को, मत प्रार्थना छोड़ो।
जैसे पहली दशा थी आपकी, अच्छे थे आप, ब्लेस थे आप, हाँ आप अचानक बीमार हो गए, सडनली शैतान अटैक कर दिया। लिखा है डोंट गिव अप। आपकी पहली दशा जो थी, अब की दशा उससे बढ़कर होगी, महिमा योग्य हो गई। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। परमेश्वर को सोच रहा है हमारे बारे में, वो उसकी थिंकिंग अलग है, हमारी सोच थॉट्स अलग हैं, उसका थॉट अलग है, सोचना अलग है। मत गिव अप करो, डोंट गिव अप। परमेश्वर मंदिर बनवा रहा है, परमेश्वर हिम्मत दिलवा रहा है, नबी से लोगों को हिम्मत दे रहा है, काम करो, कुछ नहीं हुआ, ऐसा है। हम लग जाएं काम में, हम लग जाएं खुदा की महिमा में, चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में लग जाएं। और हमारी जो पहली दशा थी, लिखा कलाम में जो दशा थी, इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर उस दशा को जो पहले थी उससे बढ़कर दशा हमारी चंगी करने जा रहा है। बोलो आमीन, हालेलुया। लिखा है सेना का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं शांति दूंगा, सेना का यहोवा यही वाणी है। बोलो हालेलुया। राजा राजा उठ खड़े होते थे परमेश्वर के घर को बनाने के लिए, उकसाता था खुदावन। और दारा राजा, कई लोगों ने प्रभु के घर को बनवाने की हाँ एक अनुमति दी। कुछ राजाओं ने उसे उजाड़ दिया, कुछ लोगों ने हाँ। और पहली दशा कैसी थी, सुंदर थी, बाद में क्या दशा होगी, उजाड़। ऐसे ही होता है हमारी लाइफ में, पहले अच्छे थे प्रभु में, अभी क्या हो गया, बीमारी आ गई, हाँ कर्जा आ गया, प्रॉब्लम्स आ गई। और क्या कह रहा है, जो आपकी पहली दशा थी, इसी हाँ जो आपकी दशा पिछली थी, यानी कि पहले थे, परमेश्वर कह रहा है ये दशा जो अब की दशा है उससे बढ़कर महिमा वाली होगी। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। परमेश्वर कुछ बड़ा करने जा रहा है मेरी और आपकी लाइफ में। मत डोंट गिव अप, मत गिव अप करें, छोड़े ना खुदा उनको, प्रेयर करनी स्टार्ट करें। प्रभु बहुत बड़ी बेदारी दे रहा है आपकी लाइफ के में, चंगे हो जाओ, प्लस हो जाओ, खुदा आपको यही कहता है। बोलो आमीन, सारे बोलो आमीन। परमेश्वर का भवन बनाने के लिए उन्हें तैयार कर रहा है, उसकी सेवा के लिए तैयार कर रहा है, उसको उत्साहित कर रहा है। प्रभु के कामों में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, बाइबल पढ़ो, रीडिंग करो, परमेश्वर की सेवा करो। और आपको भी पवित्र आत्मा यही कह रहा है, डोंट गिव अप। पहली दशा जो पहला दशा थी, जो पिछली दशा थी, अब इसी पहली दशा जो आपकी बेहतर होने वाली है, आज की दशा आपकी बेहतर होने वाली है, पिछली दशा से बढ़कर होगी, बरकत होगी, गवाही के साथ खड़े होंगे आप। बोलो आमीन, जोर से बोलेंगे आमीन। प्रभु ने मुझे शांति दी इस वचन के द्वारा। प्रभु ने कहा काम रुका हुआ है, डोंट वरी, तेरी अब की दशा बेस्ट होगी। यीशु के नाम में काम होने जा रहा है, आपकी ज़िंदगी में काम होने जा रहा है। आंखें बंद करेंगे, मैं प्रेयर करूंगा आपके लिए। परमेश्वर आपके बच्चों को छू लीजिए खुदा, जिन लोगों ने अगर वचन सुना है और पिता आपने बताया है, हाँ डोंट गिव अप, मत गिव अप करो। और परमेश्वर जी ये हागे तेरा जड़ा प्रॉफिट है, नबी दास इन लोगों को उत्साहित कर रहा है परमेश्वर, भवन खुदा का भवन बनाने के लिए प्रभु, और तेरे कामों को करने के लिए, चर्च में स्थापित तेरी बढ़ियाई करने के लिए प्रभु लोगों को उत्साहित कर रहा है। मत छोड़ो गिव अप, मत करो गिव अप। और प्रभु जिन लोगों को छू ले पिता, ये कभी भी गिव अप मत करे खुदा, डोंट गिव अप, कभी भी ये गिव अप मत करे पिता परमेश्वर, ये कभी भी परमेश्वर जी अपनी लाइफ को शैतान को देने के लिए तैयार ना रहे मेरे खुदा। शैतान की लाइफ से चला जाए, बीमारी चली जाए, संकट चला जाए, क्लेश चला जाए, रोग चला जाए, चंगे हो जाओ यीशु के नाम दे विच। और पिता ये आगे बढ़े, तेरी महिमा को करे। आपने प्रार्थना सुनी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वचन के द्वारा लोगों से बात करना, ब्लेस करना, आशीषित करना। और पिता ये चंगे हो जाए, गवाही का कांड बने, और आने वाला समय बरकत से भरा हो ये महीना। और पिता परमेश्वर ये जो मंथ है, ये ब्लेसिंग्स का मंथ है इनके लिए मेरे खुदा। रास्ते को खोल दे, जैसे उसने लिखा है कि हाँ लिखा है प्रभु, वो 7वें महीने और 21वें दिन परमेश्वर का वचन हागे नबी के पास पहुंचा। और धन्यवाद प्रभु जी, ये महीना 7वां है। और पिता इनको बरकत के साथ भरना, और 21 दिनों में इनकी आशीष को, इनकी बरकत को इनको वापस करना जो शैतान ने छीनी है खुदा। चंगे हो जाओ, ब्लेस हो जाओ। ये जुलाई मंथ में आपको बहुत बड़ी बरकत मिले, चंगे हो जाओ, आशीषित हो जाओ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आपको हील करता हूँ, चंगे हो जाओ यीशु के नाम से। ब्लेस किया, धन्यवाद प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मंगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। मेरा विश्वास है यह वचन आपके अंदर गया होगा, और जो भी आपने सुना है प्रभु आपको बरकत दे। आपकी दशा आगे आने वाली है, अच्छी होगी। आपकी जो कंडीशन है, जो आपका जीवन है, जो पहली दशा थी, बहुत अच्छे थे आप, सडनली बीमारी आ गई, और अब भी
वो बेस्ट दशा, वो बेस्ट जीवन आपको प्रभु देने जा रहा है। बड़ी होगी, पहली दशा से बड़ी होगी आपकी दशा। बोलो आमीन। आपकी ज़िंदगी, आपकी हालात अच्छे होने वाले हैं। प्रभु आपको बरकत दे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।